ایکسپریس سپورٹس پیج میں آج کی سرخیاں۔ پاکستان نیوزی لینڈ سیریز، پہلے ون ڈے میں پاکستان کی ناقص کارکردگی، نیوزی لینڈ نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملے پر پاکستانی کرکٹرز اور پی سی بی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، کھلاڑیوں نے 1 سال سے کم کا معاہدہ مسترد کر دیا۔ اور آسٹریلین اوپن خواتین کے فائنل میں بیماری کے باوجود سرینا ولیمز نے ماریا شراپووا کو ہرا دیا۔ سرینا کا چھٹا آسٹریلین اوپن اور 19واں گرینڈ سلام ٹائٹل۔ یہ سب اور ان کے علاوہ بہت سی خبریں اور ان پر تجزیے ایکسپریس سپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپریس سپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج پاکستان کا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ تھا اور اس میچ میں پاکستانی ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی بولنگ اتنی مؤثر نہیں ثابت ہو رہی، پریکٹس میچز میں بھی یہی ہوا اور آج پہلے ون ڈے میں بھی یہی دیکھنے کو ملا۔ یقیناً اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور محمد عامر کہ جنہوں نے آج کلب کرکٹ کھیلنا شروع کر دی ہے، 2 دھڑوں میں لوگ بچ چکے ہیں، اس رائے کے حوالے سے کہ آیا محمد عامر کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو انہیں سپورٹ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کا بڑا ہاتھ تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے رکن کی دلی خواہش تھی کہ محمد عامر کم بیک کرے۔ بہت ساری چیزیں اور ان چیزوں پر ڈسکس کریں گے۔ ایک طرف تو محمد عامر کا کیس پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے زور و شور کے ساتھ لڑتا ہے، نجم سیٹھی صاحب بھی دبئی چلے جاتے ہیں، اور دوسری جانب دانش کنیریا جس کو کہ سزا بھی نہیں ہوئی، جس پر کرکٹ کھیلنے کی پابندی ہے، وہ اب تک اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، دہائی کر رہا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے، اس پر بھی بات کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کال لیں گے اور پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ لیگ اسپنر دانش کنیریا کہ جنہوں نے پاکستان کی جانب سے 260 سے زائد ٹیسٹ وکٹیں حاصل کی اور اس کے علاوہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کی کارکردگی بڑی شاندار رہی۔ ون ڈے اگرچہ کم کھیلے، انگلش کاؤنٹی ایسیکس کی انہوں نے نمائندگی کی اور ان دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے عطاب کا شکار ہے۔ ان سے ہم بات کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کو اسکرین پر ہمارا ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس، اس کے علاوہ ٹویٹر کا ایڈریس، فیس بک کا ایڈریس، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دانش کنیریا سے۔ دانش، تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ کیا فیل کرتے ہیں محمد عامر 4.5 سال کے بعد آج انہوں نے کلب کرکٹ بھی کھیلنا شروع کر دی اور ان کو ایک ہیرو بنا کر پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آخر آپ کے ساتھ کیا ہے؟ میرے پروگرام میں پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان آئے، انہوں نے کہا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں دانش کنیریا کے حوالے سے کہ اگر ہم آپ کو بتا دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس لیے ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اقبال بھائی، تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے آج بلایا۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایز اے پلیئر کے لیے تو خوشی ہوتی ہے جو بین ہٹا ہے اس کو کھیلنے کی، کیونکہ کرکٹ کے لیے تو کرکٹ ہی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن جس طرح سے سپورٹ کی جا رہی ہے اور جس طرح سے پی سی بی نے پوری حد تک کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادہ دوہرا معیار ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پلیئر کے ساتھ ہوتے تو باقی بھی پلیئر ہے، سلیم ملک سے لے کے عطاء الرحمان، محمد آصف، سلمان بٹ، سب پلیئرز ہیں، تو وائی اونلی اینڈ اونلی محمد عامر؟ دیر مسٹ بی سم تھنگ اوور دیر۔ اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی وہ ہوگی بات کہ وہ شاید اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے چیئرمین شہریار کی بات کی، شہریار خان آئے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی، 4 سال ہو گئے میرے تو کیس کو، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بلا کے مجھے کیوں نہیں تو واضح کرتے ساری چیزیں؟ بلاتے نہیں ہے کوئی، مجھے بلاتے نہیں ہے، نہ مجھ سے تو بات کرتے، صرف وہ آ کے ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی بات کرتے کہ بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تو بری لگتی ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی آ کے اس طرح سے آ کے چینل پہ آ کے اس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ اس سے کئی چہروں پر سے نقاب بھی اتر جائے گا، اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن دانش کنیریا نے جب 2000 میں اپنا ٹیسٹ کیریئر شروع کیا تو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء تھے، جو 1999 سے لے کر 2003 تک پی سی بی کے چیئرمین رہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو لاہور میں واقع ہے وہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ میں ایک امید کی شمع روشن کر گئی۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم توقیر ضیاء صاحب۔ وعلیکم السلام مرزا، کیسے ہو؟ دانش کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔
बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपका एक स्टेटमेंट भी आया और आपने अपने जमाने में आप उस रिपोर्ट को भी मंजर आम पर लेकर आए, जस्टिस कय्यूम कमीशन की। कई खिलाड़ियों पर पाबंदी भी लगी और मैंने बताया कि आपका दौर भी बड़ा जबरदस्त दौर था क्रिकेट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। कैसे देखते हैं, बाज लोग कहते हैं ये दोहरा मेयार है तौकीर रिज़ा साहब, कि एक खिलाड़ी को कि जिसने मुल्क की इज्जत का सौदा किया, जेल गया, रिहा हुआ, उसने इंटरव्यू देने के पैसे लिए और उसके बाद हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। आपने तो पाकिस्तान फौज में सर्विस की, आपकी क्या राय है? आपने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, आपकी क्या राय है जनरल साहब? देखो, मुझे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं कादिर को सुन रहा था कल कि वो जो कय्यूम की रिपोर्ट जो थी और उसमें बाकी लोगों को क्यों नहीं अब आप लोगों ने निकाला। बात यह कि कय्यूम की रिपोर्ट में बाकी लोगों के ऊपर सिर्फ शकूक थे, उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं था। अगर प्रूफ होता तो जैसे सलीम मलिक को निकाला तो शायद बाकियों को भी निकाल देते। तो इसलिए जब शकूक हो तो फिर तो नहीं निकाला जा सकता, पूरा एविडेंस होना चाहिए। अब जहां तक आमिर की बात है, देखो पहले मैं आमिर के बारे में वैसे तो मैं कह तो चुका हूँ, वो बच्चों की तरह है, बहुत अभी छोटा है। मैं इस लेवल के ऊपर आके उसके बारे में, आसिफ के बारे में या दानिश या सलमान बट के बारे में कैसा कोई अच्छा तो नहीं लगता। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ तो आप इसको बचा के इंग्लैंड से ले आते अगर आप समझते कि ये आपका वसीम अकरम है, तो वो तो आपने किया नहीं और आपने उनको छोड़ दिया। उनके ऊपर एक जुर्म साबित हो गया जो कि एक क्रिमिनल एक्ट था, उसके बाद उसको 5 साल की सजा मिली। अब बात यह है कि आप एक सजा याफ्ता आदमी को जब दोबारा लेके आएंगे तो आपको क्या गारंटी है कि वो आदमी जो है वो दोबारा इस किस्म के काम नहीं करेगा, या उसको देख के बाकी लोग जो हैं उनको वो साथ चलाना नहीं चाहेगा, या उनको बुकीज अगर छोड़ देंगे। और बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप मुझे बताओ कि उन बच्चों का क्या कसूर है कि अगर जो विकेट इतनी ले रहे हैं कि आप इस आदमी को जो कि सजा याफ्ता है उसको आप वापस में आए, और जो बच्चे इतनी विकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में बेचारे मेहनत कर रहे हैं आप उनको बिल्कुल भूल जाएं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये करना है तो फिर आई एम अफ्रेड आप दानिश कनेरिया के साथ, आसिफ के साथ, सलमान के साथ भी वही सलूक करें जो कि आप सलूक आमिर के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जब आमिर को आप अलग एक हीरो बना के देते हैं तो या तो उस आदमी में कोई ऐसी काबिलियत आप देख रहे हैं कि आपको फ्यूचर में वो वाकई वसीम अकरम नजर आ रहा है, तो शायद उसमें उनकी कोई जस्टिफिकेशन हो। लेकिन मेरे जाती ख्याल में बहुत सारे, और अगर क्रिकेट बोर्ड ने मदद करनी है तो किसी और जगह उसकी मदद करनी है। एक और चीज जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईसीसी बहुत दिलचस्पी ले रही है। जायल्स क्लार्क जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे थे, आमिर की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहे थे। आजकल जायल्स क्लार्क उस कमेटी के हैं और आईसीसी में बड़े ताकतवर हैं। आप समझते हैं कि बाज लोगों का ये परसेप्शन भी है कि आमिर की वापसी के लिए जो आईसीसी उसे सपोर्ट कर रही है उसकी वजह यह है कि वो जब टीम में आएगा तो वो आईसीसी को इंफॉर्मेशन देगा? क्या ये परसेप्शन दुरुस्त समझते हैं आप? देखो, वो अभी ये तो एक इंडिविजुअल का अपना फेल है कि आप किस तरीके से उनके लिए काम करेंगे। मतलब इंटेलिजेंस में जब आप लोगों को डालते हैं और किसी के आप रैंक्स में जब इनको पेनिट्रेट करते हैं तो वो इसी वजह से करते हैं ना कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आईसीसी ने सिर्फ आमिर से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी। आपकी दुनिया क्रिकेट में देखो, आईपीएल आप देख लो, आपके मतलब, और आपकी दुनिया में आप मुझे बता रहे हैं कि इसमें कोई स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग आजकल नहीं हो रही। लेकिन लोगों की परसेप्शन है, अगर प्रूफ नहीं निकल रहा तो अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आईसीसी तो एक यूजलेस सा अदारा बन गया, क्योंकि बिग 3 वाला इदारा है ना जी। और अगर बिग 3 में ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसके बारे में उनके अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ये इसके घर वाले मुलव्वस थे या इसकी अपनी कोई इतनी रेपुटेशन नहीं है, तो आईसीसी के इदारे को वो जेंटलमैनली गेम जो इन्होंने चलानी है वो तो फिर वो नहीं चला रहे ना। तो मैं तो आईसीसी के इदारे को तो कोई इतना अहमियत फिलहाल नहीं दूंगा जब तक बिग 3 है। लेकिन बहरहाल मैं आमिर आई एम श्योर कि बहुत खुश होगा कि नजम सेठी साहब ने उसके लिए बहुत काम किया या शहरियार साहब उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त क्रिकेट बोर्ड से सिर्फ ये है कि जिस तरीके से आप आमिर का केस लड़ रहे हैं आप बाकी लोगों का भी केस लड़ें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर रिज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन तौकीर रिज़ा, बड़े ब्लंट अंदाज से आपने सुनी गुफ्तगू। बिल्कुल माशाल्लाह। तो तौकीर रिज़ा साहब जब वो थे तो चेयरमैन थे, तो वो मेरा तो डेब्यू हुआ था उस टाइम पे फैसलाबाद टेस्ट में, और माशाल्लाह जितना इनका ना टेन्योर था जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, तो जितनी इनकी एफर्ट्स थी
वहाँ देखे कि एकेडमी बनाई है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई है, और जितना इन्होंने तो सपोर्ट किया पाकिस्तान टीम को और प्लेयर्स को, तो मेरे ख्याल से जितना इन्होंने काम किया उसके बाद से लोग आते गए, काम वैसा नहीं हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा था और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि उस टाइम से जो हमारी टीम बनना शुरू हुई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी फर्स्ट टाइम उसी दौरान आए थे जब ये तो चेयरमैन साहब बने थे। तो मेरे ख्याल से तौकीर जिया साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जहाँ तक इन्होंने बात की अपना दौरा मेयार की, बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल जब इन्होंने बात की तो जस्टिस कय्यूम वाली रिपोर्ट के अंदर शकूक के ऊपर इनको सजा नहीं दी गई, तो मेरे ऊपर शकूक के ऊपर सजा कैसे दी गई? वो भी मुझे तो लाइफ बैन दिया। वो तो एक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट थी, मेरे ऊपर तो एक ECB का तो पैनल था जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तो खुद बनाया गया था, और उन्होंने मुझे शकूक के ऊपर लाइफ बैन कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। दानिश कनेरिया हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, जरूर हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया से, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। दानिश कनेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और हम आज पाकिस्तान के वनडे के हवाले से भी एक पोर्शन में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, हमें बताया गया। हम आपकी कॉल्स यकीनन आप हमें कीजिएगा। कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें और अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दानिश, कितना दुख होता है, अब आपने हिम्मत तो हार दी ना, अब तो खत्म। नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लैंड भी अपने लॉयर के साथ राब्ते में हूँ। यहाँ पर जो है मेरे लॉयर डॉक्टर मोहम्मद फारूक नसीम के साथ भी राब्ते में, वो थोड़ा सा वो थे तो बिजी थे अभी। जी हाँ, सेनेटर फारूक नसीम साहब वो अपना तो बिजी थे, और वो थे अपना इस्लामाबाद थे, फिर उसके बाद वो जो है तो कराची में थे, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से थोड़ा सी तो बिजी है। तो जैसे ही वो उनको वो मिलेगा तो टाइम मिलेगा तो मैं अपना जो केस है वो हमने एक एंगल बनाया हुआ है, और जो तो बहुत सारी चीजें हैं जो तो मंजर आम पे आना बाकी है कि जो PCB ऑफिशियल्स की जो तो तस्वीरें हैं वो मेरे पास है, और बाकी चीजें हैं जो उसको हम केस लेके आगे चलेंगे। ऑफिशियल भी बीच में कोई रुकावट है? देखिए कि ऑफिशियल आप अभी कुछ समझ नहीं आता है कि अगर मेरा केस ऐसा नहीं है कि इन केसों के साथ जैसे आमिर का था, आसिफ का, सलमान बट का था, पूरा का पूरा केस शको शबात के साथ सारी चीजें सामने आई, उनको जो है तो क्रिमिनल केस बना उनका। मेरा केस तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है, सिर्फ शक है। और जो बंदा जो जेल गया मोर्गन वेस्टफील्ड, उसके कहने के ऊपर और कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई सबूत है। एक बंदे के कहने के ऊपर आप किसी को लाइफ बैन कैसे कर सकते हैं? ठीक है। और क्रिकेट तो जो है जो आपकी तो रोजी रोटी वो आप और ये अपना जो है ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। ठीक है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का करम। कौन साहब कहाँ से? जी अकील बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अकील साहब। जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें आपने बताया जी आमिर साहब के बारे में कि उन्होंने ये किया वगैरह वगैरह जो भी है, मगर हम एक तरफ ये देखें, अगर वो पाकिस्तानी उनकी उम्र भी बहुत ही 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जब उनके भाई ऐसा लाइफ बैन जो भी इन्होंने किया, मगर हम उनको अगर माफ कर दें एक इंसानियत के नाते और अपने हर एक चीजें छोड़ के उनको हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, तो इससे बड़े कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया है वो गलत है, बस हमारी अपनी ये जो चीज खराब होगी, इज्जत खराब होगी पाकिस्तान की, हमारी इज्जत सबसे बढ़ के ये कि हमारा वो एक सरमाया है कौम का, और उससे गलती होगी इंसान, तो यहाँ पे अल्लाह ताला भी माफ करता है इंसान को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया? अब 25 बरस के हो जाएंगे आमिर अप्रैल में, तो आप समझते हैं टैलेंट खत्म हो गया? हमें पीछे की तरफ पलट के देखना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए? सर मैं आपको ये कहूंगा कि टैलेंट पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द PCB बोर्ड वो बिल्कुल गलत है। देखिए वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि अच्छा टैलेंट आ गया है। मैं खुद यहाँ पे हम खुद देखते हैं लोगों को, और इतने अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। कौन से लोग हैं अकील साहब जो नहीं चाहते? ऑब्वियसली इन द PCB बोर्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग। कौन से लोग? कोई खास लोग हैं या सारे के सारे?
मेरा ख्याल है कि जो ऊपर वाली हायर मैनेजमेंट है वो खुद अपने पर्सनल लोग लेके आना चाहती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से कॉल किया। हर एक की अपनी अपनी राय है और एक्सप्रेस न्यूज आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप इस पर अपनी राय का इजहार करें। और देखते हैं इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? सैयद शोएब रहमान कराची से बात कर रहा हूँ। जी शोएब, क्या पूछना चाहेंगे आप कराची से? मैं पूछना तो चाहूंगा कि अभी पीसीबी ने पेंटन कप कराया था, ये वर्ल्ड कप की टीम को जांचने के लिए कराया था, लेकिन इसमें तो सिर्फ शायद लग रहा है सोहेल खान के लिए कराया गया था, एक सोहेल खान को ही लिया, जबकि उससे बेहतर चॉइस थी अनवर अली, हर तरह से ऑलराउंडर, बेहतरीन बैट्समैन। और अभी भी हो रहा है एक वनडे टूर्नामेंट, अभी भी हो रहा है, कल उसका फाइनल है, लेकिन वो तो टीम जा चुकी है, अब उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन आपने शोएब मलिक को पसंद और नापसंद की भेंट चढ़ा दिया, उसने परफॉर्मेंस भी उसको लेना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे सईद अजमल और हफीज के अलावा ऑफ स्पिनर के लिए आपका बेस्ट चॉइस थी शोएब ऑलराउंडर की ऐसे। सही। और उसी तरह अगर आपने इस तरह की लूटी लंबी टीम भेजनी थी तो बेहतर था इनाम उल्लाह और सनी असलम जैसे बच्चे भेज देते, कम से कम कुछ ना कुछ तो जज्बे से खेलते। सही है, ठीक है। तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब, आपने हमें कॉल की। दानिश, लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से हम अजहर महमूद से भी बात करेंगे कि उनको हम लाइन पर लेंगे, उनसे भी पूछेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। पहले जरा से ये बताइए, जो आज वनडे पाकिस्तान हारा, आपकी क्या राय है? बॉलिंग कमजोर नजर नहीं आ रही? देखिए, इसमें तो इकबाल भाई बहुत ज्यादा जो है तो पाकिस्तान टीम ने तो पैथेटिक शो वो किया था, पेश किया। पहले आप ये तो वनडे से पहले देख लें कि जो इनके साइड प्रैक्टिस मैच थे वो भी गए, और क्योंकि प्रिपरेशन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। जब आप ठीक है आप हारते जा रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं 92 वर्ल्ड कप की कि हम पहले भी हार रहे थे, हम 6 मैच हार गए थे, फिर हमने कम बैक किया, लेकिन वो 92 के प्लेयर्स थे, उसके अंदर सारे सुपरस्टार्स थे, ठीक है ना। और जो बाकी टीमें थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अभी की क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो गई है 92 की क्रिकेट से, फास्ट क्रिकेट हो गई है। आपने अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको प्लेयर्स आपके यंगस्टर है, उनको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप अपना जो है उस तरह से आप जो है तो मोमेंटम बनाएंगे तो आप वर्ल्ड कप में तो परफॉर्म अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका सबसे पहला मैच ही इंडिया के साथ है। जो आपकी लाइन बनेगी तो वर्ल्ड कप में आप किस तरह के थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप खेलते हैं। और जो आज का मैच रहा उसके अंदर आप देखें कि बैटिंग के अंदर भी कोलैप्स हो गई, 200 रन, बॉलिंग हमारी, और जो बॉलिंग जिसपे इतना ज्यादा वो किया जा रहा है कि हमारी बॉलिंग, लेकिन बॉलिंग भी उस मियार की नहीं रही। ठीक है, हमारी दानिश कनेरिया से तो गुफ्तगू जारी है, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अजहर महमूद ने, जिन्होंने 1997 में अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। अजहर महमूद टेस्ट खेले, 143 वनडे का उन्हें तजुर्बा, और 3 वर्ल्ड कप अजहर महमूद पाकिस्तान की जानिब से खेले, 1999, 2003 और 2007 का। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अजहर। जी वालेकुम सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। अजहर, दानिश कनेरिया हमारे साथ बैठे, हम इसके हवाले से जी। दानिश आपको हाँ, अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अजहर, वर्ल्ड कप के हवाले से आज हम वनडे भी हार गए, आप पाकिस्तान के जबरदस्त ऑलराउंडर रहे, 3 वर्ल्ड कप आपने पाकिस्तान की जानिब से खेले, अंडर 19 से आए, क्या समझते हैं वजह क्या नजर आती है? मुसलसल तीसरा मैच था, 2 प्रैक्टिस मैच और आज का मैच, जिसमें हमारी बॉलिंग इतनी कामयाब नहीं हुई। आपके अपने तजुर्बे की रोशनी में आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते? देखें इकबाल भाई, आपकी कॉम्बिनेशन जो है ना, अभी तक आपका कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है। आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ है सईद अजमल के बॉलिंग ना करने से, टीम में ना होने से, और हफीज पे जो बैन लगा है, तो आपका सारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। अभी आपने भट्टी को टीम में शामिल किया है, पहले तो वर्ल्ड कप की, अब पता नहीं वो वर्ल्ड कप की टीम में है या नहीं है, तो आपके पास तो ऑलराउंडर ही नहीं है कोई, शायद अफरीदी के अलावा। सही। तो आप अभी आज आप जो मैच खेले हैं, आप उसमें हारिस फील्ड को आप जो है ना 5वां बॉलर खिला रहे हैं, तो इस तरह आप क्वालिटी टीम के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि आप मैच जीत सकते हैं। आप अपनी बैटिंग को कंपनसेट करने के लिए आप एक बॉलर जो है वो कम खिला रहे हैं, यदि हमारी बैट इतनी तगड़ी नहीं है, और उसको आप कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे दुबई में जब आपने उसको खिलाया, वहां उसकी विकेटों पे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विकेटों में काफी ज्यादा फर्क है। तो वहां आपको मैच आप जीतते हो हमेशा बॉलरों की वजह से। सही। आप 10 विकेटें लोगे तो आप मैच जीतोगे। अभी कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि एक टीम में 350 रन कर दिए और दूसरी टीम चेस कर सकती है वो 350 रन, लेकिन आपके पास बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए। हमारा बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन अभी आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं। मुझे तो आज के मैच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगा कि आप
वर्ल्ड कप जाके जीत सकते। अच्छा अजहर, आप दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर T20 भी खेले, आपकी परफॉर्मेंस चाहे आप मुख्तलिफ ममालिक की आप टीमों की जानिब से खेले, इवन न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से भी खेले, आपकी क्या राय है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? आज जो कॉम्बिनेशन उन्होंने आजमाया कि इन्होंने 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और फिर उसके बाद 1 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स, आप समझते हैं कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मतलब अभी अगर 92 का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसमें हमारे पास जो चौथे बॉलर थे आमिर भाई, आमिर सोहेल वो अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते थे। हारिस सोहेल अभी उसने बॉलिंग स्टार्ट की है, मुझे नहीं पता कि डोमेस्टिक में उसने कितनी ज्यादा बॉलिंग की होगी। तो वहाँ की जो कंडीशन थी, दुबई और शारजाह और अबू धाबी की जो कंडीशन थी वो डिफरेंट है वहां से। तो आपको कॉम्बिनेशन, आप चाहे उसमें वहाब रियाज को लेके आए या किसी भी बंदे को टीम में शामिल करें, तो आपकी बॉलिंग में मेरा ख्याल है कि आपको बॉलिंग की ही वजह से आप मैच जीत सकते हैं, अनलेस के कोई आपका बैट्समैन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल रहे हैं। जैसे आज अफरीदी ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली आज, सही, ठीक है, वो क्रूशल ऐसा टाइम था, उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया। तो बीच में आप प्रॉब्लम, मेरे हिसाब में जो हमारी बैटिंग को जो प्रॉब्लम मुझे जो लगी है वो ये है कि हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, हम डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेली जाते हैं, एक बाउंड्री मारते हैं और उसके बाद अपने ऊपर प्रेशर कर लेते हैं। सही। तो क्रिकेट में सबसे हमने जो अपने सीनियर से, जितने भी जावेद भाई हो गए, एनजी भाई हो गए, हमने उनसे ये चीज सीखी है कि भाई सबसे अच्छी जगह जो है एज अ बैट्समैन के लिए वो नॉन स्ट्राइकर एंड है। हमने एक किया और नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, आप देखें कि अगर किसी लड़के ने 35 बॉल पे 20 रन बनाए हैं तो उसमें 4 बाउंड्रीज होंगी और सिंगल्स तो होंगे नहीं, उसमें डॉट बॉल ज्यादा होती रहती है। अब दुनिया का जो बेस्ट प्लेयर है AB डिविलियर्स, वो ये बात बोलता है कि मुझे क्राइम लगता है कि मैं डॉट बॉल खेलूं। सही। तो हमारा ही मसला ही ये हो गया, और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें हुई है हमारे बैट्समैन को, कि जो आपके फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन चेंज हो गई है। उससे बड़ा फर्क पड़ा है। अंदर जो है 5वां बंदा सर्कल के अंदर आ गया, तो पहले क्या होता था, मिड ऑन पीछे होती थी तो आप सामने सिंगल ले लेते थे। सही। अभी वो सिंगल मिल नहीं रही। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड पे खेलना पड़ेगा, थोड़े से गैप निकालने पड़ेंगे, तभी आप कामयाब। अगर आप माशाल्लाह कोचिंग भी कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम था, आइंदा आपको हम जरूर जहमत देंगे और आपसे तफसीली बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अजहर महमूद हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनेरिया के साथ आपके अपने शो एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अजहर महमूद से, जिन्होंने कोचिंग अब शुरू कर दी है। लेवल 2 का उन्होंने कोचिंग कोर्स भी किया है। दुबई में भी वो अपनी एक एकेडमी के जरिए लड़कों की कोचिंग करने आ रहे। बड़ी सेंसिबल बातें की दानिश अजहर ने, बिल्कुल, क्योंकि उसका तजुर्बा है ना अजहर का, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। काउंटी क्रिकेट खेले तो न्यूजीलैंड में खेले, और सबसे बड़ी बात IPL वगैरह और ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ होती है क्रिकेट वो वहाँ मौजूद थे। हाँ। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, और जो उन्होंने बात की बिल्कुल सही की कि जब तक आप रोटेशन नहीं करेंगे स्ट्राइक्स की तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एक चौका मार के वहीं 4 बॉल खेल लेते तो आपको क्या फायदा। और जो उन्होंने बात की कि जो तो फील्डिंग वो आई है, तो रिस्ट्रिक्शन आई है कि तो मिड ऑन ऊपर होता है तो आप सिंगल नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको तो गैप्स बनाना आने चाहिए कि आप गैप्स में डाल के सिंगल डबल करें तो रोटेशन होती रहती है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिर्जा भाई, खैरियत है? कौन साहब, कहाँ से? अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ, न्यू कराची। जी अब्दुल रहीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? मिर्जा साहब, आपकी तबीयत सही है? जी जी, आप फरमाइए, कहना क्या चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ओपनिंग है, वन डाउन है, मतलब ये इसको चेंजिंग नहीं कर सकते। ये 15 इनिंग खेलते हैं यूनुस और ठीक है, 40 रन बना देते हैं, किसी में 50 रन बना देते हैं। बस ठीक है, आपका ये मशवरा हम कोच वकार यूनुस और बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब, आपने हमें कराची से कॉल किया। दानिश, बॉलिंग के हवाले से क्या 2 लेग स्पिनर खेल सकते हैं? आज आपने देखा न्यूजीलैंड की विकेट्स पर बाउंस भी था। आपने देखा आज जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग की, 147 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी गेंद आई, और ओवरऑल अगर उसकी देखी जाए अबव 140 किलोमीटर। बॉलिंग हमारी आपको नजर आती है इतनी पेनिट्रेटिव? नहीं, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही है बॉलिंग, क्योंकि शायद ने भी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं वो
جو ان کی جو بیک ہے, جو لیگ اسپنر کی ٹوسٹ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس طرح وہ کرتے تھے ٹویک کرتے تھے اپنی بیک کو, اور جو ان کو وہ ملتا تھا زپ ملتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. ابھی ان لوگ لے کے گئے تھے یاسر شاہ کو, لیکن یاسر شاہ نے صرف اور صرف ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں دبئی کے اندر. ایک ون ڈے 2011 میں وہ کھیلا, 2011 میں گیا تھا, لیکن ایکسپیرینس نہیں تھا ون ڈے کرکٹ کا, کیونکہ وہاں کی کرکٹ, وہاں کی وکٹیں ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہاں گیند سیم ہوتا, اور جہاں سیم ہوگا رائٹ آرم لیگ اسپنر رسٹ سے بالنگ کرتا ہے, اس کا بال بہت زیادہ بریک ہوگا, کیونکہ میں نے وہاں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. آسٹریلیا میں تو کھیلی تھی, کامران اکمل نے کتنے کیچز لیے تھے آپ کی گیندوں پر؟ جی ہاں بالکل وہ بات. چھوڑے تھے لیے تھے کیچز؟ چھوڑ دیے تھے, نہیں تو ہم والا ٹیسٹ میچ جیت جاتے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہولڈ پر ہے, ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ کامران اکمل کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیریئر جو ہے نا مصباح الحق کی وجہ سے ان کا کیریئر تباہی کی طرف دوچار ہوا. ایک کالر ہے ہمارے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب, کہاں سے؟ سر شیراز بات کر رہا ہوں, سیال کوٹ سے. سیال کوٹ سے شیراز, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر آج کے جو میچ کے حوالے سے مصباح پر ایک متواتر تنقید آ رہی ہے, لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے انہوں نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کی ہے کہ وہ ایک بیسٹ پلیئر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یونس خان کا اگر دیکھ لیں تو ون ڈے میں وہ ایک عرصے سے پرفارمنس نہیں کر رہے, جبکہ ٹیسٹ میں وہ پرفارم کر جاتے ہیں. تو ہم انہیں کیوں کھلاتے ہیں, جبکہ ہمارے میڈیا پرسن بھی ان کی تعریفوں کے گن گا رہے ہوتے ہیں, انہیں ہونا چاہیے. جبکہ نئے لڑکوں کو چانس کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وہی چہرے ہیں جو بدل کے آتے ہیں, جو انڈر 16 انڈر 19 نہیں کھیلتے, وہ کسی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم سے تو آ کے ٹیم کا پارٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے شیراز, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. یونس خان کے حوالے سے بات کی, یونس سے رنز نہیں ہو رہے, ایک سینچری انہوں نے کی تھی ابو دھابی میں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے؟ اسٹرگل وہ کر رہے ہیں, اور لیکن یونس خان بہت بڑا پلیئر ہے, بہت بڑا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں گا, اقبال بھائی جو ہماری لوگ ہیں وہ تھوڑا سی ہے نا چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک سینئر پلیئر ہے ہماری ٹیم کا, اس سینئر ٹیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو ایز اے بیٹسمین کے لیے, کیونکہ 50 اوور نہیں ہم کھیل پا رہے پورے کے پورے. تو سینئر پلیئر ہے, 2003 سے کھیل رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. یونس خان اس سے بہت بڑے پلیئر ہے. یونس خان جتنی پرفارمنس دی ہوئی ہے اس نے ہر جگہ کی, وہ اگر اپنا بیٹنگ میں نہیں کرے گا تو فیلڈنگ میں آپ کو کچھ کر کے دے گا, تو وہ ہے ٹیم مین پلیئر ہے, ضرورت ہے. شیراز صاحب آپ کو یقیناً جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیا کہیں گے؟ میں نے یہ کہنا تھا یار, دیکھیں بجائے دانش کنیریا کے ساتھ تھوڑا بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, اس کو جو ہے نا پی سی بی کو کم سے کم اس کا جو ہے نا کیس وغیرہ لڑنا چاہیے, جیسے انہوں نے عامر وغیرہ کا لڑا. اور دنیا میں سب بھی اس طرح کرتے ہیں سب, لیکن ٹیم میں آ رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, لیکن ان کو معافی دینی چاہیے, لیکن سب کو جو ہے نا ٹیم میں شامل ہو جائیں. سلمان بٹ اچھا اوپنر تھا. اور دوسرا میں نے یہ کرنا ہے, افریدی تک میرا بات پہنچا دیجیے, جو 2011 کا سیمی فائنل محالی میں ہوا تھا نا, اس سے بدلہ لے لے انڈیا سے میچ کے ساتھ جیت کے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے علی, آپ کا بہت بہت شکریہ. علی کہہ رہے ہیں کہ یکساں سلوک ہونا چاہیے, بریڈ اینڈ بٹر ہے کرکٹ, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ دانش کنیریا پاکستان ٹیم میں آ جائے یا سلمان بٹ پاکستان ٹیم میں آ جائے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل رہی ہے, کیونکہ ہماری جو روزی روٹی یہی ہے. میں اس کے لیے 4 سال سے اپنا کیس کو پلی کر رہا ہوں. اگر میں نے کچھ کیا ہوتا نا جس طرح سے یہ لوگ جتنے پلیئرز ہیں وہ آ کے, تو میں سائڈ پہ ہو جاتا, میں کہیں نظر بھی نہیں آتا. اگر میں نے کچھ کیا ہوتا, اگر میں نے سب سے پہلے کیس اپنا عارف علی خان عباسی صاحب, راشد لطیف صاحب اور جتنے میڈیا پرسن ہیں آپ سب کے سامنے رکھا کہ بھائی میں نے کچھ کیا تو مجھے بتاؤ. لیکن جو لوگ ہیں بورڈ چیئرمین آ کے کہتے تو ایسی چیزیں کہ مجھے تو بلا کے کیوں نہیں وہ کرتے سامنے نا, مجھے وہ تو بلائیں گے تو وہ میری تو ٹکٹ کا ہی پیسہ نہیں دیں گے, وہ مجھے تو خود ہی کرنا پڑے گا. لیکن ایٹ لیسٹ بلائے تو صرف مجھ سے بات تو کرے نا, مجھے بتایا تو صحیح کہ کیا چیز ہے کیا ہے. لیکن آپ ایک طرفہ بات سنیں جو جائز کلاک کہہ رہا ہے. شہریار خان جائز کلاک کی بات کر رہے, وہ کہہ رہے کہ میں پاس میں جب نہیں تھا چیئرمین تو میں نے بہت ساری باتیں سنی. کیا باتیں سنی؟ باتیں تو بہت ساری ہے, ہم تو باتیں تو روزانہ سنتے, پی سی بی کے کتنے آفیشلز کے بارے میں, پی سی بی کے بارے میں سنتے رہتے, لیکن حقائق کب ہوتی ہے جب آپ اس کے لیے ثبوت لے کے آئے سامنے. لیکن آپ بات پہ بات بنا رہے, اور آ کے تو نیشنل ٹی وی پہ اتنے بڑے چینل پہ آ کے آپ اس طرح کی بات کرتے, پلیئر کے خلاف بات کرتے, لیکن آپ اس پلیئر کو تو بلائیں نا, اس پلیئر کو تو دکھائیں نا چیزیں کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو جاری ہے, ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے, کل کے سوال کا جواب بھی آپ کو بتائیں گے اور آج کا سوال بھی پوچھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ دانش کنیریا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है दानिश कनेरिया। इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दानिश, ये बताइए कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप में, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, 2 मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्राइस्ट चर्च और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नेपियर में, न्यूजीलैंड में, और ये 3 टीमें बड़ी तगड़ी हैं। और फिर उसके बाद आयरलैंड हमारे ग्रुप में, जिम्बाब्वे हमारे ग्रुप में और मुत्तहिदा अरब अमारात है। कैसे देखते हैं हमारे ग्रुप? देखिए, हमारा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के जितने मैचेस हैं वो सारे मैच अहम है, और हमें अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है तो हमने शुरू से अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमें सारी टीमों को बैकआउट करना पड़ेगा जिस तरह की टीम है। क्योंकि तैयारी है हमारी? तैयारी इतनी नहीं है, क्योंकि हमने जो है पिछला जब वर्ल्ड कप हम खत्म हुआ था तब से कह रहे रीबिल्डिंग प्रोसेस, तो अभी भी रीबिल्डिंग प्रोसेस ही लग रहा है टीम के अंदर। 8 प्लेयर तो वही है उस टीम के, 8 प्लेयर वही है, लेकिन इकबाल भाई वो देखें कि जिस तरह का जो है कॉम्बिनेशन है, काफी लड़कों ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली 1-2 साल से, किसी ने साल से नहीं खेली है, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रहे, इंजरीज बहुत ज्यादा है। शोएब मकसूद का नहीं पता कि वो 100% है कि नहीं है। सोहेल खान अभी तक नहीं खेला मैच, इंटरनेशनल मैच अभी तक नहीं खेला, 2011 में लेकिन वो तो साइड मैच खेला, लेकिन इंटरनेशनल मैच अभी तक नहीं खेला। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, प्रेशर पड़ता है उससे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? अजीम राहत बात कर रहा हूँ कराची से। जी अजीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? वक्त कम है मेरे पास। हाँ, वक्त बिल्कुल कम है, लेकिन मैं दानिश भाई को आपको सलाम पेश करता हूँ। बड़ी देर के बाद मिर्जा साहब आपसे बात हो रही है। बात यह है कि आप देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो दानिश भाई के साथ जो एक सिलसिला चले आ रहा है, चाह रहा हूँ कि जैसे आमिर के साथ सारा सिलसिला सामने आया, इस बंदे को बुलाया जाए ना, इसका क्या कसूर है? ठीक है, इस बंदे के लिए बहुत सारी चीजें सामने हैं। अब तो ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एज ए ऑलराउंडर खेल सकता है, बेहतरीन बैट्समैन है। हम लोग साथ भी खेले, बहुत सारी चीजें। और ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराउंडर तुम कब से बन गए दानिश? बस अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि यू नेवर नो। अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी क्रिकेट में जो है प्रैक्टिस वगैरह करता रहता हूँ, ट्रेनिंग करता रहता हूँ। जो है अपना लड़कों को अपना जो आते हैं प्रैक्टिस पे उनको बताते हैं। जी हाँ, अच्छा ये बताइए, आपकी नजर में आयरलैंड की टीम, जिसने आप उस वर्ल्ड कप में थे ना, आप 2011 के जब हम आयरलैंड से हारे, आपकी नजर में आयरलैंड की टीम टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को? जी हाँ, बिल्कुल टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि जो कंडीशंस है वो आयरलैंड को सूट करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि वो आयरलैंड है, वो फास्ट बॉलर्स को खेलते हुए आ रहे, सीम को खेलते हुए आ रहे, स्विंग को खेलते हुए आ रहे, जो उनकी कंडीशन है आयरलैंड में। स्पिनर्स पे हल्के हैं, जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी मिस्टेक किया था, हमारे स्पिनर नहीं खेला था, मैं नहीं खेला था वाला मैच, हमारे सीमर्स खेल गए थे, अजहर महमूद खेल गए थे वो मैच। लेकिन अपना वो देखे कि हमारी जो तो बॉलिंग अटैक है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर है हमारे, वो उनको बहुत ज्यादा सूट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं गुज़िश्ता प्रोग्राम के सवाल की तरफ। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपसे एक सवाल किया था कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से किन 2 बैट्समैनों ने सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर की है, और इस सवाल का सही जवाब है सईद अनवर और रमीज राजा, दोनों ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में 3-3 सेंचुरियां बनाई हैं। बजरिया कुरानंदाजी अबूजर गफ्फारी है, सादिकाबाद रहीम यार खान के, वो ये क्रिकेट बैट के जो हम सीए स्पोर्ट्स की जानिब से देते हैं, जीतने में कामयाब हुए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अबूजर गफ्फारी, ये क्रिकेट बैट। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ, और आज का सवाल ये कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा छक्के किस बैट्समैन ने लगाए वर्ल्ड कप मुकाबलों में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के टाइप के ऑप्शन में जाकर SHM टाइप करना है, उसके बाद जो सही जवाब है वो लिखना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और उसे भेज देना है 2474 पर। अगर बहुत सारे जवाब सही आए तो बजरिया कुरानंदाजी, ये क्रिकेट बैट जो सीए स्पोर्ट्स की जानिब से हम देते हैं, वो हम बजरिया कुरानंदाजी देंगे, और दानिश कनेरिया आप इस पर अपने दस्तखत करें ताकि ये क्रिकेट बैट उस खुश नसीब तक जाए। और दानिश आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ना आपको कि वापस आएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, बिल्कुल डोमेस्टिक में। ठीक, डोमेस्टिक में, और इंशाल्लाह अपनी कोशिश होगी कि मैं अपना केस जो है क्लियर करूं अपने नाम को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।